Hello students, how are you all? I hope you are perfectly fine and doing your studies at your home. Students, let me remind you once again that we are discussing chapter number 3 and the name of the chapter is The Aunt and Amabel. Students, this chapter is written by Edith Nesbit and it is taken from Edith Nesbit's book, and the name of that particular book is The Magic World. ओके, ये स्टोरी एडिथ नेस्बिट की द मैजिक वर्ल्ड से ली गई है. ओके, इन दिस chapter we are studying about Amabel and her aunt. Okay, firstly I will give you a quick revision which I have taught you on Friday, Saturday and Monday video classes. Okay, let's start. Students, I have told you that Amabel is a such kind of a girl who always kept trying to make her aunt happy. Okay, to make her happy, she plucked some flower from greenhouse and stick in front of the window of her aunt's bedroom. Okay, seeing that, her aunt became very upset and she stopped talking to Amabel. Okay, then Amabel went her aunt's bedroom and she found something to read, and at least she found a magical book in her aunt's bedroom. Okay, and the name of that magical book is A, B and C. This is a picture alphabet, and in this particular book she knew some cities which were the name whose name were written in that magical book, and the cities are, first one is Britain, second one is Rugby, and the last one is Amberley. Okay, she knew all these places. Why? Because in Britain she has once spent a month. Okay, and in Rugby her brother went to school, and in Amberley city her home was situated. Okay, that's why she knew all these cities. Now she wanted to go Whitby by trains. Okay, now she wanted to go Whitby by train. Okay, and where the Whitby word is written, she saw the extraordinary name, and the name was Where You Want to Go To. Okay, now this was seeming very odd. ये बहुत ही अलग दिखाई दे रहा था, बहुत अलग वर्ड था. ओके, इसके साथ साथ वहाँ पे एक स्टेशन का नाम भी था, एंड द नेम ऑफ दैट स्टेशन वाज बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम. ओके, आफ्टर एंड अंडर दैट इज स्टिल स्मॉलर लेटर्स. ओके, इसके बाद स्मॉलर लेटर्स में एक और वर्ड लिखा हुआ, एक और सेंटेंस लिखा हुआ था, एंड दैट सेंटेंस वाज यू हैड बेटर गो नाउ, कि अब आप अब वहाँ विटबी जा सकते हैं. ओके, नाउ शी सा अ वार्डरोब इन हर aunt's bedroom, and she turned its glass handle. She saw a crystal cave whose shaped like a railway station. Okay, it seemed to be lighted by the stars, and the station clock was a full moon. Okay, ऐसा लग रहा था जो ट्रेन में लाइट थी वो स्टार्स के द्वारा दी गई रोशनी थी, और वहाँ पे जो क्लॉक था वो एक फुल मून की तरह दिखाई दे रहा था. And the clock had no figure, just now word was written 12 times on the clock. Okay, after that a porter came and told her that it is a good time to go Whitby. She was ready to go to the Whitby, and she saw that the train was made entirely of crystal. पूरा white कलर से बना हुआ है, and the cushion were of also white satin. There were little buttons such as you have for electric bells. ओके, कुछ छोटे छोटे बटन्स भी थे. ओके, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स की बटन्स होते हैं जिनको प्रेस करने पे आवाज़ आती है और
पता चलता है कि बाहर कोई आया है. Seemed like that electric bells were on the cushion, and on them some words were written, some sentences were written. Which were the sentences? First one is, what you want to eat, and second one is, what, and the second one is, what you want to drink, and last one is, what you want to read. In these sentences were written in the silver letters. Okay, now what happened next? Amabel pressed all the buttons at once, and instantly she saw on the cushion by her side a silver tray with a vanilla ice, boiled chicken and white sauce, almonds, peppermint cream, and mashed potato, and a tall glass of lemonade. Beside the tray was also a book. Okay, जब उसने इन बटन्स को प्रेस किया, इंस्टेंटली तभी एक सिल्वर ट्रे उसके सामने आती है जिस पर वेनिला आइस, बॉइल्ड चिकन, वाइट सॉस, आमंड्स, पेपरमिंट क्रीम एंड ऑल्सो मैश्ड पोटैटो, एंड लास्ट वन was a tall glass of lemonade. Lemonade means a juice of lemon. These were on the tray. Okay, and beside the tray there was also a book. Okay, now Emma started to read that book. When she finished the last spoon of ice and she reached at the last page of the book, the train was also stopped. ट्रेन भी तभी रुक जाती है और उसके सामने एक बहुत बड़ी जो भीड़ है, उसके सामने क्राउड जो है वो दिखाई देता है. ओके, और कुछ रेलवे ऑफिशियल्स जो हैं वो उससे पूछते हैं, वेयर यू वांट टू गो टू, कि आप कहाँ जाना चाहती हैं. अ स्माइलिंग पॉटर ओपन द डोर. नाउ ही सेड, कम ऑन आउट मिस एमाविल, अनलेस यू वांट टू गो टू वेयर यू डोंट वांट टू गो टू. ओके, अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहती हैं तो आप इस स्टेशन पर उतर सकती हैं. ये वर्ड जो हैं वो पॉटर के द्वारा पूछे गए. शी हरीड आउट ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड सा अहेड ऑफ हर अ क्राउड. ओके, जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है. व्हाट्स ऑल दैट, शी आस्क्ड द फ्रेंडली पॉटर. ओके, उसने पूछा कि ये सब क्या है. व्हाट इज ऑल दैट. Then the potter replied to her that it is a mayor. Okay, ये mayor है. After that the mayor came in front of Amabel and he bowed low to her and said, welcome dear Amabel, we know you mean to please your aunt. तब मेयर ने अमाबेल से कहा, वी न्यू. ओके, हम जानते हैं कि तुम अपनी आंट को खुश करना चाहती थी. इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है. यू डिडंट नो यू शुड आस्क परमिशन बिफोर यू टच अदर पीपल्स थिंग. क्यों? क्योंकि तुम्हारी फॉल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता था कि दूसरे लोगों की चीज़ों को छूने से पहले यू शुड आस्क परमिशन, आपको परमिशन लेनी चाहिए. ओके. Oh, but said Amabel, quite confused. I did. Okay, I did. Oh, she felt very sorry. Okay, for that कि उसने ऐसा किया. But a band started to play and drowned her words. The instruments of bands were all of silver. Students, I have already told you that the silver or white word is common in the whole story. Okay, अधिकतर चीज़ें जो है इस चैप्टर में सिल्वर कलर में दिखाई गई हैं. तो सिल्वर कलर इज़ वेरी कॉमन इन दिस चैप्टर. ओके, बैंड्समैन जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अपना बैंड बजाना स्टार्ट करते हैं. ओके, देयर वाज आल्सो अ फ्लावर शो एंड आल्सो कॉन्सर्ट, अ ग्रैंड डिनर विद थाउजेंड ऑफ गेस्ट इन एमावेल्स ऑनर. ओके, वहाँ पे फ्लावर शो रखा गया है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट रखा गया है और उसके सम्मान में एक ग्रैंड डिनर उसके लिए आयोजित किया गया था. एंड दे ऑल क्राउड शाउट दैट शी शुड से समथिंग इन these gestures. Okay, Amabel began, ladies and gentlemen, I don't want to make a speech, I just want to say thank you. वो ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं देती है. शी wanted to say just thank you. Then she stopped and wished that her auntie was
हर आंटी मे बी प्रेजेंट देयर। वो ये विश करती है कि काश उसकी जो आंटी है वो भी यहाँ प्रेजेंट होती। तभी इंस्टेंटली आंटी वॉज देयर, वेरी टॉल एंड क्वाइट नाइस लुकिंग इन अ वेरी एलिगेंट ड्रेस। एलिगेंट मीन्स ग्रैंड। ओके, शी वॉज प्रेजेंट। अभी वो विश ही कर रही होती है, अभी ये इच्छा ही होती है कि आंट भी उसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इतना ग्रैंड उसका वेलकम देखती। अभी वो इच्छा कर ही रहती थी कि तुरंत उसी समय उसकी आंट उसके सामने प्रेजेंट हो जाती है इन वेरी टॉल एंड एलिगेंट ड्रेस। ओके, जो ड्रेस उसने पहनी होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। आंटी, यहाँ तक हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो हमने फ्राइडे, सैटरडे और मंडे को लिया था, इतना हमने कवर कर लिया था। और अब जो है वी आर गोइंग टू कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। Speech, cried the crowd. Speech for auntie. Now the crowd wanted speech फ्रॉम आंटी। ओके, अब जो क्राउड है वो आंटी से स्पीच मांग रही थी, यानी वो चाहती थी कि आंटी उनके लिए अपनी एमावेल के लिए और लोगों के लिए एक स्पीच दे। आंटी स्टूड बी साइड एमावेल एंड सेड। इसके बाद आफ्टर दैट आंटी स्टूड बी साइड एमावेल, वो एमावेल के बगल में जाके खड़ी हो जाती है एंड सेड, और कहती है, आई थिंक परहैप्स आई वॉज हेस्टी एंड आई थिंक एमा विल मीन टू प्लीज़ मी। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दबाजी में थी एंड आई थिंक एमा विल मीन टू प्लीज़ मी, और मुझे लगता है कि एमा विल जो है वो मुझे सिर्फ खुश करना चाहती थी। शी जस्ट वांटेड टू प्लीज़ मी, बट दोज फ्लावर्स वर मीन्ट फॉर द विंटर। बट दोज फ्लावर, वो फूल जो उसने तोड़ लिए थे वो फूल विंटर मौसम के लिए थे। ओके, और उसने बिना पूछे, आंटी से बिना पूछे जो है उन फूलों को तोड़ लिया था। दैट्स वाई शी बिकेम वेरी अपसेट। इसी वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। आई वॉज अनॉयड, आई एम सॉरी। ओके, नाउ आंटी ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर हर बिहेवियर। उसने हमारे उसके साथ जो बिहेव किया अपने बिहेवियर के लिए, शी ऑल्सो फेल्ट सॉरी, वो भी सॉरी मांगती है। Oh, auntie, so am I, cried Amabel, and the two began to hug each other on the ivory step while the crowd cheered. Okay, now Amabel also felt sorry for her doing. Okay, उसने जो किया वो भी उसके लिए सॉरी फील करती है। नाउ दे हग टू ईच अदर। ओके, अब वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो उनके सामने जो क्राउड है वो चीयर करती है। एंड व्हेन इट ग्रीव लेट एंड द स्टार्स वर आउट। ओके, जब रात हो जाती है और तारे निकल आते हैं, एमाविल फेल एस्लीप इन हर आंट्स आर्म बिसाइड अ फाउंटेन ऑन अ मार्बल टेरेस वेयर वाइट पीकॉक्स केम टू ड्रिंक। ओके, एमाविल फेल एस्लीप इन हर आंट्स आर्म। ओके, एमाविल अपनी आंट के आर्म्स में ही सो जाती है। ओके, बिसाइड अ फाउंटेन ऑन अ मार्बल टेरेस, जो मार्बल फाउंटेन बना हुआ था उसके टेरेस पे वो सो जाती है। और इस फाउंटेन में हमेशा पीकॉक्स केम टू ड्रिंक, पीकॉक हमेशा पानी पीने के लिए आया करते थे। शी अवॉक ऑन अ बिग बेड विद हर आंट्स आर्म्स स्टिल राउंड हर। वो जब जाग जाती है, जब अपनी उसकी नींद पूरी हो जाती है और वो जब जग जाती है, व्हेन शी वोक अप शी फाउंड हर सेल्फ इन आंट्स आर्म। ओके, वो अपने आप को अभी भी आंट के आर्म में पाती है। एमावेल, शी वॉज सेइंग, एमावेल, ओ आंटी, सेड एमावेल स्लीपली। ओके, सोते हुए एमावेल जो है आंटी से कहती है, आई एम सो सॉरी बट आई डिड मीन टू प्लीज़ यू। मैंने जो कहा उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। ओके, मैं आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर डूइंग वट एवर आई हैड डन। ओके, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू प्लीज़, टू मेक यू हैप्पी। आई जस्ट वॉन्टेड इट। मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी, बस। आई एम श्योर यू मीन टू प्लीज़ मी। नाउ कम डाउन टू सपर, सेड हर aunt and smile. Students, what is the meaning of supper? The meaning of supper is dinner. Okay, the meaning of supper is dinner. Now the aunt told Amawil that she
she knew that she wanted to make her happy. So forget it. What happened, forget it. जो हुआ भूल जाओ और अब नीचे आओ और अपना डिनर कर लो, said her aunt and smiled. Amabel looked around for the magical book but it was nowhere. Amabel अपने चारों तरफ मैजिकल बुक देखती है but there was no मैजिकल बुक. ओके, नाउ द स्टोरी इज़ फिनिश्ड, ख़त्म हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने इस स्टोरी से ये सीखा है कि वी शुड आस्क परमिशन बिफोर टचिंग अदर पीपल्स थिंग. ओके, दूसरे लोगों की चीज़ों को छूने से पहले हमें दूसरों से परमिशन लेनी चाहिए, सो दैट ताकि वो जो है हमसे नाराज़ ना हो, हमसे गुस्सा ना हो. ओके, सो वी शुड आस्क परमिशन फ्रॉम अदर पीपल्स बिफोर टचिंग द थिंग्स. ओके, बिफोर टचिंग द थिंग्स. So that's it for today, students. You will practice it at your home. You will revise this chapter again and again, and also you will write the word meaning and tough meaning in your practice copy. We will meet soon. Goodbye, students.